Hi everyone, I hope you all are doing fine and are safe. I am here to share my views about the mental health and depression. And आप सोच रहे होंगे लो एक और वीडियो आ गया इस पे तो yeah, it's true that in the recent days and in this lockdown and pandemic situations, mental health become the very burning topic in India and as well as got the attention of almost most of the citizens of the India. Because जहाँ तक मुझे लगता है कि many people have passed through this phase in this lockdown and felt personally about the stress, anxiety and depression. That's why they became aware about the mental health also. Because होता नहीं जब तक आप personally feel नहीं करते, you don't talk about it. So that's why हद सब लोग mental health के बारे में बात कर रहा है. बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक थिंग्स. मुझे इसमें कोई बहुत डिटेल्स में नहीं जाना, नाइदर आई एम एन एक्सपर्ट, बट आई विल जस्ट से सम वेरी डिटेल्स बेसिक्स फैक्ट्स अबाउट द मेंटल हेल्थ which one should know before categorizing anything: depression, anxiety, stress, or even mental health issues. First of all, this depression, anxiety and stress, and there are several other like schizophrenia, bipolar disorders. These are the mental health related problems. दे अकर व्हेन देयर इज समथिंग डिसफंक्शनल या कुछ आपके मेंटल हेल्थ के साथ छेड़छाड़ होती है, तब ये सारे इश्यूज आते हैं. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स. दिस इज नॉट अ मेंटल हेल्थ which is generally called as the abnormality caused in your mental health in the psychological terms, and these all topics comes in the normal psychology even. So first I would like to tell a brief about the mental health. Ki what is mental health? If I go about the bookish language, या you can say कि Google कर लो, but most of the people can Google it. आप भी करते होगे कि mental health क्या है. We are reading about that कि it is able to perform functionally, fully your emotionally and behavioral adjustment in the society and in your day-to-day life. So if in simple language, if I would say that कि आपकी ability है to cope up with your day-to-day problems, your stress and handle it very effectively, and as well as your ability to work productively and effectively whatever fielding you are. अगर आपके वर्क लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको इजिली टैकल करके आप अपना आगे बढ़ सकते हो. आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आती है, आप इजिली उसको हैंडल करके आगे बढ़ सकते हो. यू डोंट जस्ट मेक योर सेल्फ, या फिर उस चीज को अपने ऊपर आप हावी नहीं होने देते हो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को. दिस इज वॉट कॉल्ड अबाउट द मेंटल हेल्थ, एंड दिस इज ऑल अबाउट द मेंटल हेल्थ. इट इज योर मेंटल इट इज योर मेंटल वेलबींग बेसिकली, कि आपका दिमाग कितना हेल्दी है टू एबल टू परफॉर्म यू फिजिकली, बिकॉज देयर इज अ वेरी राइट एंड वाइड कनेक्शन बिटवीन योर मेंटल हेल्थ एंड योर फिजिकल हेल्थ. एंड नाउ इट्स द डिप्रेशन. इट इज अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम. In psychology, it comes under the mood disorder. Depression is a kind of mood disorder in broad terms. So mood disorder, just the नाम ही बता रहा है भाई, mood disorder. तो definitely it depends on your mood and it has an impact on your mood. डिप्रेशन हम जो मतलब जनरली हम क्या सोच लेते हैं डिप्रेशन को, दुखी रहना, दिन भर रोते रहना, या फिर हम किसी ऐसे को देखते भी हैं कि जो बहुत दुखी है, परेशान है, तो हम कह देते हैं यार डिप्रेस्ड है. आई मीन ठीक है, दुखी होना इज ऑल्सो वेरी नॉर्मल. आप इंसान हो, यू आर ह्यूमन, यू आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स in the way of one thing that you are able to feel and express your emotions, and sadness is one of those emotions. It is very natural to feel your emotions and express it too. So don't categorize being sad as just as depression. आपका ब्रेकअप हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, कोई काम आपका नहीं बन रहा है, या फिर आप किसी चीज में रिपीटेडली फेल्योर पा रहे हो, सक्सेस नहीं पा रहे हो, तो आप बोल देते हो कि यार मैं तो डिप्रेशन में हूँ. ठीक है, दैट्स ऑल ओके, बिकॉज इट्स वेरी जर्नल. हम जनरली जानते ही नहीं, इसलिए हम जो सुनते आते हैं वही बोलते रहते हैं. बट डिप्रेशन इज अ वेरी प्रोलॉन्ग प्रोसेस. डिप्रेशन एक बहुत लंबी चीज है. इट इज नॉट अ डे 1, day 2 और 1 week थिंग. अकॉर्डिंग टू APA, डिप्रेशन इज इट कवर्स ऑल योर नेगेटिव मूड्स एंड इट स्टार्ट अफेक्टिंग योर बिहेवियरल चेंजेस, योर फिजिकल हेल्थ, योर इमोशनल हेल्थ. ये सारा इंक्लूड करके एक डिप्रेशन का टर्म आता है. क्योंकि अकॉर्डिंग टू APA, इफ द सिम्टम्स विच आई विल इंक्लूड लेटर्स, अगर ये आपका 2 week से ज्यादा एक्सटेंड करता है विथ मोर देन 5 symptoms, एक्चुअली मोर देन 5 symptoms. ये नहीं कि अगर आप कंटिन्यूअसली दुखी हैं तो आप उसको डिप्रेशन में ले लेंगे, या फिर आप कंटिन्यूअसली अपना लॉस ऑफ इंटरेस्ट में है तो आप उसको डिप्रेशन में ले लेंगे. इट इंक्लूड्स मोर देन 5 symptoms along with it. The first symptom, which is a very common and very observed
Now coming to the symptoms, what are actually making any sadness into depressions? It's your continuous or persistent pervasive behavior. Like अगर आपका जो भी सिम्टम है वो 1-2 वीक से ज़्यादा परस्यू मतलब प्रोलॉन्ग हो रहा है और कंटिन्यू है मोस्टली एवरी डे, देन इट विल बी फॉल इनटू डिप्रेशन. इट इज़ जनरली इंक्लूड्स योर सैडनेस कि आप बहुत दुखी हैं एंड ऑलमोस्ट एवरी डे आप दुखी फील कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जा रहा है. यू आर नॉट एबल टू फील हैप्पी. आपके घर में खुशियाँ मन रही हैं, त्यौहार मन रहे हैं, बट आपको खुशी नहीं हो रही. कोई इवन यू आर नॉट एबल टू फील बैड ऑल्सो, आप बैड भी नहीं फील कर पा रहे हो. एंड देन इट्स योर नॉट इवन बैड, इट इज बिकेम योर मोनोटोनस. आप मोनोटोनस हो जा रहे हो. नाउ द सेकेंड इज योर लॉस ऑफ इंटरेस्ट. मतलब आपका कुछ मन ही नहीं कर रहा करने का. यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनी थिंग. लाइक एवरी डे यू आर नॉट विलिंग टू डू एनी थिंग. जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट भी होता था आप उसको नहीं करना चाह रहे हो. दीज टू आर द वेरी मेजर symptoms of the depression which must extend to 2 weeks. Now other symptoms include your significant loss of weight or gain of weight. Suddenly आपकी physical health पे इसका effect आता है and it's obvious कि अगर आपकी mental health disturb होगी तो वो physical health को affect करेगा ही करेगा. तो it will affect your health also. It will affect your physical, you can say, body metabolism and all things. So significant weight loss or significant weight gain is also a symptom of depression. Now it is lethargy, like restlessness. You are feeling almost every day restlessness. आपके अंदर इतनी थकान है, कोई हिम्मत नहीं है कि आप वर्क करो. आप ऑलवेज थके थके से बोझिल सा फील कर रहे हो. यू आर हैविंग फटीग एंड लॉस ऑफ एनर्जी. All it is also a pervasive or it should also pervasive and persistent. And then it is the very observed, you can say very observed symptom. It's insomnia and hypersomnia. Insomnia is like आपकी नींद नहीं है, आपको नींद नहीं आ रही है, आप even you want to desire but you are not able to sleep. और एक है हाइपरसोमनिया जिसमें आप सोए ही जा रहे हो भाई साहब, आप दिन रात सोए जा रहे हो. मतलब इवन यू आप उठते हो और फिर आप सोने के लिए सोचते हो. दिस इज द थिंग ऑफ इन हाइपरसोमनिया. एंड देयर इज अ लैक ऑफ एपेटाइट कि आपको भूख की प्रॉब्लम होती है एंड आपको भूख नहीं लगती. यू आर नॉट फीलिंग हंग्री, यू आर नॉट टेकिंग योर प्रॉपर डाइट. एंड देन इज योर अनदर सिम्टम विच इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी मतलब शॉर्ट वन. इट इज़ योर लाइक यू स्टार्ट आइसोलेटिंग योर सेल्फ. और मेरा आइसोलेशन से मतलब ये नहीं है कि अपने आप मी टाइम को भी ले लो इन आइसोलेशन. इट्स वेरी गुड दैट यू स्पेंड योर मी टाइम एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंट्रोस्पेक्शन एनालाइजिंग. बट इट्स लाइक मोर कि यू स्टार्ट अवॉइडिंग पीपल. आप लोगों से मिलना, लोगों से कॉन्टेक्ट करना इंटेंशनली कम कर दो. अपने मन से आपका मन ही नहीं है उनसे मिलने का. आप मतलब यू स्टार्ट क्या छोड़ो. मतलब आपके 4 दोस्त बैठ के चाय पी रहे हैं, उन्होंने बोला यार आजा तू चाय पीते हैं, और आप ऐसे कहो कि नहीं यार हटाओ मेरा मन नहीं है, एंड यू जस्ट गो बैक एंड सिट इन योर रूम अलोन. सो दिस इज योर अवॉइडिंग एंड इट इज मोस्टली सीन, it is the mostly observed. And then it is your difficulty in focusing, in which is in students it's very common that you start feeling difficulty in focusing. You are not able to concentrate anything, you get hazy thoughts, you are not able to think properly, and as well you are not able to take decisions. It's obvious कि एक prolonged depression मतलब अगर कोई भी चीज़ prolonged चल रही है तो वो आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस को भी अफेक्ट करेगी. आपकी थिंकिंग एबिलिटी, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, इसको भी अफेक्ट करेगी. सो डिप्रेशन हैज ऑल्सो इफेक्ट ऑन दीज प्रोसेसेस. इवन इट कैन डिक्रीज योर मोटिवेशन बिकॉज इट इज सब आपस में जुड़ा ही तो है. अगर आप अच्छे से थिंक नहीं कर पा रहे हो, आप अच्छे से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल एंड द रिजल्ट ऑफ इट यू विल बी वेरी डीमोटिवेटेड. You are having very low self-esteem. You are not able to give your full performance, your full, you can say, potential in any field in which you are working. Whether you are a student, whether you are working, or whether as a family member contribution also, you are not able to give that. So these are the very basic symptoms which include in the depression, and it includes अगर आपके आसपास आप किसी को देख रहे हो इन सिम्टम्स के थ्रू, इवन एनालाइज योर सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज इस लॉकडाउन में तो मोस्टली जो फैमिली और फ्रेंड के साथ हैं, प्लीज़ यू आर वेरी लकी, एंड हु आर नॉट, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.
and don't think you are not alone. Everybody is going through a very bad time and everybody is locked down in it. बट ओके, हमने जान तो लिया कि इसके सिम्टम्स क्या हैं एंड ये क्या हैं, एंड ऑलवेज थिंक दैट बीइंग सैड इज नॉट डिप्रेशन. प्लीज गेट दिस इन योर माइंड, बिकॉज एक बहुत ही कॉमन नैरेटिव चल गया है कि दुखी हैं हम या किसी भी चीज़ से हमें प्रॉब्लम हो रही है, हम परेशान हैं तो हम उसको डिप्रेशन का नाम दे दें. प्लीज़ डोंट. Please check the symptoms and also see the duration of it and then label it as the depression, because depression is a medical term and it need to be cured. And now coming back to that, how we can get along with the depression or how we can able to cure it. First of all, it's my very humble request and you can say a very humble suggestion also. Like from my own experience, if I said that मोस्टली पीपल डोंट रियलाइज कि आप कब डिप्रेशन में चले गए. आपको पता ही नहीं चलता कि ये डिप्रेशन कब आपके ऊपर हावी हो गया. सो हम शायद उन सिम्टम्स पे भी उतना फोकस नहीं कर पाते, हम ध्यान ही नहीं दे पाते, हम उन सिम्टम्स को समझ ही नहीं पाते, या हमारी बॉडी हमें अलार्म कर रही होती है, हम उन चीज़ों को नहीं फोकस कर पाते बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन टू दैट स्टेट. सो वी आर नॉट एबल टू फोकस कि हम डिप्रेसिव में जा चुके हैं. एंड इट्स मोस्ट लाइक कि आप चले जाते हैं नेचुरली. यू आर नॉट, आप पहचान नहीं पाते और आप चले जाते हैं. एंड आई कैन से इट फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस. यू आर नॉट एबल टू just recognize and you will be in depressed and you will called as a depressed person. So please take care of it before going into that phase, because that phase is, you can say, negatively pulling. अगर आप एक बार उसमें चले गए तो you will just start sinking and absorbing all those negativities around you, whether it is related to you or whether it is not related to you. आपको छोटी से छोटी बात भी ट्रिगर करने लग जाती है, चाहे वो किसी के बारे में भी हो. So just take care of yourself. And then if you once get, please do talk about it. Please do talk about your emotions. Please share your thought. इसमें शर्माने की कोई मतलब ऐसे डोंट फील ashamed. मोस्टली पीपल लाइक, पता है हमारे इंडिया में क्या है कि हम बात ही नहीं करते कुछ चीज़ों पे बिकॉज हम सोचते हैं अरे यार सामने वाला क्या सोचेगा, अगर मैंने उससे बोला कि मैं दुखी हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ा देंगे, या फिर वो सोचेंगे कि कैसा पागल है, इसे इतना बड़ा हो गया है या फिर इतनी बड़ी हो गई है, एंड ही और शी इज टॉकिंग अबाउट ऑल दोज स्टफ्स. तो लोग हमें समझाने लग जाते हैं. पता है सबसे द बेसिक थिंग इज दैट पीपल स्टार्ट, वो हमें समझाने लग जाते हैं, दे डोंट लिसन अस. सो इट्स वन ऑफ माई रिक्वेस्ट ऑल्सो दैट प्लीज़ अपने अगल बगल अपने क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली को आप लिसन करिए, उनको सुनिए, एंड ऑल्सो प्लीज़ डू टॉक अबाउट इट. अगर आपको कभी भी लगता है कि यू आर फीलिंग लो, you are not in happy mood for a constantly long time, please do talk about it, share it, and don't feel ashamed about it. इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है. मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर ये सही है आपका तो सब सही है. अगर दिमाग सही है तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं. अगर यहाँ से खिसका कुछ नहीं होगा भाई आपका. सो प्लीज डू टेक केयर ऑफ इट, एंड ऑल्सो हैव सम गुड फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स अराउंड यू. प्लीज़ मेक सम रियल कॉन्टैक्ट. ये अपने इंस्टा के फॉलोवर्स, फेसबुक के फॉलोवर्स एंड व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स, डोंट गो ऑन दैट. आप एक दो फ्रेंड्स बनाओ लेकिन मेक अ गुड फ्रेंड्स अराउंड योर सेल्फ, सो दैट इन दोज टाइम्स यू आर एबल टू शेयर योर व्यूज एंड शेयर योर थॉट्स अबाउट दैट. And I will also say that please develop some hobbies, because your hobbies helps a lot in distracting all these things and distracting yourself, or keeping yourself in a very good path. Like create hobbies. सबका कुछ ना कुछ तो होता ही है. किसी को लिखने का शौक है, किसी को गाने का है, कोई पेंट करता है, कोई इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है, somebody is singing around. So please focus for that more thing and don't, it's not hobbies कि आप इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो, फोन यूज कर रहे हो, that is not your hobby, that is your time pass which is a waste of time. Do it, but it is also very knowledgeable. Use it for right time and for right purpose, not for just wasting your time. Develop your hobbies. Also keep engage yourself in the productive things. अपने आप को आप एक शेड्यूल बनाओ, उसमें बिजी रखो, and that जब मस्ट बी इट प्रोडक्टिव हो या ना हो, दैट इज लाइक ठीक है कोई बात नहीं, बट कीप योर सेल्फ बिजी इन समथिंग, लाइक कि आप कुछ कर रहे हो, आपको फील हो खुद से कि आप कुछ कर रहे हो. एंड द मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज योर फिजिकल फिटनेस यार. लाइक
अब तो मतलब इतना सारा फिजिकल फिटनेस पे बहुत सडन से सबका जोर भी आ गया, फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट भी हमें इम्पोज करने लग गई डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स लाइक खेलो इंडिया, पढ़ो इंडिया, फिट इंडिया, दीज ऑल स्कीम्स आर गोइंग ऑन. तो इट हैज़ अ वेरी डीप कनेक्शन विथ योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो. अगर जो कहते थे ना कि एक गुड या फिर एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होता है, देन इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू. इफ़ यू आर फिजिकली फिट एंड इफ़ यू आर डूइंग एक्सरसाइजेज एंड एवरीथिंग, then you are able to you are able to handle all those day-to-day problems and your mental health problems very effectively, and you will able to gratify it also. As well as I will also suggest you all that if you are feeling you are not able to taking toll, you are not able to talk about it, you are not able to, because ये होता है कि हमारे generally we don't talk about all these things. हम नहीं बात करना पसंद करते हैं बिकॉज हम सबको अपनी वीकनेस नहीं दिखानी होती किसी को. वी डोंट वांट टू बिकम वल्नरेबल. सो हम देन आई विल सजेस्ट देयर आर एक्सपर्ट्स, देयर आर पीपल हु स्टडी दिस, देयर आर पीपल हु आर विलिंग टू हेल्प दिस फ्रॉम देयर स्टडी एंड फ्रॉम प्रोफेशनली मेथड्स. देयर आर साइकोलॉजिस्ट, देयर आर साइकेट्रिस्ट. प्लीज़ डू विजिट देम. उनके पास विजिट करना कोई मतलब शर्म की बात नहीं है. अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट एबल टू डू इट ऑन बाई ओन, प्लीज टेक हेल्प ऑफ देम बाई वेरियस टेक्निक्स, बाई वेरियस you can say the methods. They can help you by counseling, by projective, by your rational thinking or behavioral techniques. They will help you without it and you will be able to come out of this state. Please, it's my humble request कि आपकी एक ही जिंदगी है and you are very precious. Please feel you are very precious and you have so much to do in your life. Don't just waste it. Don't just let it go without having anything in your life. Be good, do good, and be happy. Always take care of yourself. I hope this video, maybe it feels very long and आपको लगे कि अच्छा खासा लेक्चर हो गया, बट आई होप इफ अगर किसी एक पर्सन को भी ये वीडियो हेल्प कर पाया, देन आई विल बी वेरी हेल्पफुल. एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी वेरी calmly and patiently over all these times. Thank you so much.